بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن اور ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ سید مبشر رضا، جو کہ سچی بات نام کی آئی ڈی سے آتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب علی محترم، یہ قادیانی مناظرہ گروپ کے اوپر ایک پوسٹ لگی ہے۔ قادیانی ربی لقمان باجوہ صاحب نے یہ پوسٹ لگائی ہے مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اس کی تاریخ پیدائش یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہاں آپ ایک چیز غور کریں کہ تاریخ پیدائش 13 فروری 1835 لکھی ہے۔ اس تاریخ کے اوپر ہم یہ لیکچر تیار کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور مرزائیوں کو، قادیانیوں کو بھی اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 177 اور کتاب البریہ ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی خود اقرار کرتا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے خود بتایا کہ میری عمر 1839 یا 1840 ہوئی۔ تو اگر ہم اندازہ لگائیں کہ مرزا قادیانی اگر 1940 کے اندر بھی پیدا ہوا تو 1908 کے اندر مرزا قادیانی کا انتقال ہوا۔ اب ہم کیلکولیٹر سے تھوڑا سا حساب لگاتے ہیں کہ 1908 کو مائنس اگر کریں ہم 1840 اور یہ عمر بنتی ہے 68 سال۔ اب آئیے ہم آپ کو مرزا غلام قادیانی کا ایک دعویٰ دکھاتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر بنتا ہے 259 ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ مرزا لکھتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو 80 برس سے بھی عمر کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، اور جو ظاہر الفاظ وحی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو 74 اور 86 کے اندر اندر عمر کی تعیین کرتے ہیں۔ بہرحال یہ میرے پر تہمت ہے کہ میں نے اس پیشین گوئی کے زمانہ کی کوئی بھی تعیین نہیں کی، اور خدا تعالیٰ بار بار اپنی وحی میں فرما رہا ہے کہ ہم تیرے لیے یہ نشان دکھلائیں گے، اور ان کو کہہ دے کہ یہ نشان میری سچائی کا گواہ ہوگا۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی عمر کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی تھی، اور یہ اس کا دعویٰ تھا۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ میری نشانی ہے، اگر میں اس نشانی پر پورا اترا تو میں سچا، اگر میں پورا نہ اترا تو میں جھوٹا۔ یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشان میری سچائی کا گواہ ہوگا۔ مراد یہ کہ مرزا قادیانی کو مرنا چاہیے تھا 74 اور 86 کی عمر کے درمیان۔ اگر تو یہ مرتا ہے 74 اور 86 کے درمیان تو مرزا غلام قادیانی اپنے اس دعوے کے اوپر سچا بنتا ہے، اور اگر 74 اور 86 کی عمر کے درمیان مرزا قادیانی کی عمر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے مرزا قادیانی اپنی وعدے کے مطابق جھوٹا قرار پاتا ہے، کذاب قرار پاتا ہے، اور یہ اس کی جو وحی اس پہ نازل ہوئی ہے یہ وحی اس کی جھوٹی قرار پاتی ہے۔ آئیے ہم اب آپ کو لیے چلتے ہیں جناب علی محترم دوسری جانب کہ جہاں مرزا غلام قادیانی کی عمر کو بڑی جو ہے ہوشیاری، چلاکی اور فریب کاری سے اس کو بڑھایا گھٹایا جا رہا ہے۔ مرزا قادیانی کی عمر کی اٹھک بیٹھک کروائی جا رہی ہے۔ جناب علی محترم یہ سیرت المہدی ہے، حصہ نمبر سوم ہے، اور یہ مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب جو کہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ کتاب اپنے باپ کی سیرت اور کردار کے اوپر لکھی تھی۔ یہ تیسرا حصہ ہے، اور اس کے ایک صفحے کے اوپر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔
देखें जी, ये सफ़ा नंबर 302 है और ये वही जिल्द हिस्सा सोम था। ये मिर्ज़ा साहब के जो बेटे हैं वो लिखते हैं कि ईसवी साल 17 फरवरी 1832 को आपकी वलादत हुई। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि मेरी उम्र जो मेरी विलादत है वो 39 और 40 को हुई, लेकिन मिर्ज़ा साहब के बेटे कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब की जो विलादत है वो 1832 को हुई। ये देखें जी, दूसरा सफ़ा है उसी जिल्द का 194 सफ़ा है और यहाँ कह रहे हैं कि मजमूई ज़्यादातर मिलान 1833 और 1834 की तरफ मालूम होता है। पहले मिर्ज़ा साहब के बेटे ने कहा, मिर्ज़ा बशीर ने कहा कि 1832 है, अब 33 और 34 का आपको एक हवाला मिल गया। आगे चलते हैं, एक और कौल बदल रहे हैं। ये जी सफ़ा नंबर 76 है, 76। यहाँ कह रहे हैं कि हज़रत मसीह मऊद की पैदाइश 1835 ईस्वी में हुई थी। यहाँ देखें जी, छलांग लगा के ये 1835 के ऊपर आ गए हैं। ये ज़हन में रहे कि पहले इन्होंने कहा कि 1832, फिर कहा कि 33, फिर कहा 34, अब 35 के ऊपर आ गए हैं। यहाँ एक और तमाशा देख लें, उसी किताब के उसी हिस्से के सफ़ा 150 के ऊपर मिर्ज़ा बशीर साहब एमए लिखते हैं, जो कि मिर्ज़ा साहब के बेटे हैं। कहते हैं कि 1836 या 1837 विलादत हज़रत मसीह मऊद साहब की बनती है। ये देखें कि पहले इन्होंने कहा कि 1832, 33, 34, 35, 36 और 37 तक आ गए हैं, जबकि मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि मेरी जो वलादत है वो 1839 और 40 को हुई है। दोस्तों, ये जो मिर्ज़ा कादियानी की उम्र की उठक बैठक करवाई जा रही है और स्प्रिंग की तरह कभी छोटा बड़ा किया जा रहा है खींच के, तो ये क्यों किया गया, ये असल में इसका ये एक सफ़ा नंबर 74 है सीरतुल मादी का, उसी में ये लिखा हुआ है। ये हिस्सा सोम कहते हैं कि बाज़ अंदाज़ों के लिहाज से आपकी पैदाइश का साल 1840 बनता है और बाज़ के लिहाज से 1831 तक पहुंचता है। मतलब ये कि 1831 से लेकर ये अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि 1840 तक आपकी पैदाइश हो सकती है। ये अंदाज़े क्यों लगाए गए? ये अंदाज़े इसीलिए लगाए गए कि मिर्ज़ा कादियानी की उसी पेशेनगोई को किसी तरीके से इन लोगों ने सच्चा साबित करना था कि मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि मेरी उम्र जो है 74 और 86 के दरमियान होगी। यानी मेरी जो उम्र है वो 74 साल या 86 साल, इसके दरमियान मेरी उम्र होगी। अब उस कौल को इन लोगों ने सच्चा साबित करने के लिए मिर्ज़ा कादियानी की उम्र की उठक बैठक करवानी शुरू कर दी, जबकि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद कहा था कि मेरी उम्र जो है वो 1839 या 40 की पैदाइश है। अब देखें, मिर्ज़ा कादियानी साहब ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र 1839 या 40 के दरमियान है, ये 2 सालों में से किसी एक साल में मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन मिर्ज़ा बशीर साहब ने उसको खींच के लंबा छोटा करना शुरू कर दिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि बाप एक बात कह रहा है, खुद तस्दीक कर रहा है कि मेरी उम्र इतनी है, लेकिन बेटा कह रहा है कि नहीं, मैंने अपने अब्बा की कोई बात नहीं माननी। हम इसीलिए तो कहते हैं कि मरज़ई जो हैं वो मिर्ज़ा कादियानी को तो मानते हैं, लेकिन उसकी एक बात को भी नहीं मानते। मिर्ज़ा को तो मानेंगे ये लोग, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी की कही हुई बातों को ये कतन नहीं मानते। उसका सबूत अभी हमने आप लोगों को दे दिया है कि मिर्ज़ा कादियानी खुद इकरार कर रहा है कि मेरी उम्र जो है वो मेरी पैदाइश जो है 1839 या 40 है, लेकिन मिर्ज़ा बशीर साहब ने उसको कभी 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक वो लेके गए हैं। और ये अंदाजे क्यों लगाए गए और ये क्यों हुआ था ये सब कुछ, वो इसीलिए हुआ था कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये असल में दावा किया था, और मिर्ज़ा कादियानी कहता था कि मेरे जो दावे हैं वो अगर मैं अपने दावों में झूठा हूँ तो मैं झूठा हूँ, मेरा कोई एक दावा साबित कर दो कि वो सच्चा साबित ना हो, तो अगर वो झूठा हो जाए तो मैं झूठा हूँ। जिसका इकरार ये देखे खुद कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब कि ये निशान मेरी सच्चाई का गवाह होगा। मतलब ये कि मैं 74 और 86 के दरमियान मरूंगा।
अब आप खुद अंदाजा करें, हमने अभी कैलकुलेटर आपको करके दिखाया था कि 1840 और 1908 मिर्जा साहब की वफात है। 1840 से 1908 तक 68 ईयर बनती है, यानी 68 साल बनते हैं। 74 तो फिर भी नहीं बनते, ज्यादा से ज्यादा भी अगर हम कर लें 1839 भी अगर कर लेते हैं तो फिर भी जो है ना वो 69 ईयर बनते हैं, पूरे 70 साल भी नहीं बनते। लेकिन मिर्जा साहब का दावा ये था कि मेरी उम्र जो है वो 74 और 86 के दरमियान होगी। इसका सबूत हम आपको और भी कुछ देना चाहते हैं। जनाब, ये हमारे सामने लेक्चर लुधियाना है और ये रूहानी खजान जिल्द नंबर 20 सफ़ा 249 लेक्चर लुधियाना। इसके ऊपर आप ये हाईलाइट इबारत देख रहे हैं कि ये हजूर यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने 4 नवंबर 1905 को हजारों आदमियों की मौजूदगी में ये लेक्चर दिया था। अब हजारों आदमियों की मौजूदगी के अंदर एक लेक्चर हो रहा है, यकीनी सी बात है बड़ी बात सोच समझ के तोल के बोली जा रही है। और इसके एक सफ़ा के ऊपर आप देखें, ये रूहानी खजान जिल्द नंबर 20 है, सफ़ा 293। ये है जी लेक्चर लुधियाना। और मिर्ज़ा साहब ने हजारों आदमियों के सामने ये दावा किया था कि मेरी उम्र 67 ईयर है, 67 साल की है। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मेरी उम्र 67 साल है। और ये लेक्चर लुधियाना कब हुआ था जनाब? 1905। यहाँ हम कैलकुलेटर पे वापस आपको लिए चलते हैं और यहाँ लिखते हैं 1905। ये 1905 के अंदर से अगर हम माइनस करें 67 साल तो क्या बनता है जनाब? फिगर आता है, यही देखें 1838। 18 तो, और ये भी गौर करिएगा, ये नीचे देखें 4 नवंबर, यानी ये 4 नवंबर मतलब ये कि साल ख़त्म हो रहा है बिल्कुल। ये आप समझ लें कि 1906 है। ये 1906 अगर करें 1906 और माइनस करें 68, आप ये देखें 1839 साल बनता है। ये वही साल है कि जिसका मिर्ज़ा कादियानी ने खुद इकरार किया था कि मेरी उम्र जो है, मेरी जो पैदाइश है वो 1839 और 1840 बनती है। ये अब देखें मिर्ज़ा कादियानी ने खुद खोल खोल के अपनी पैदाइश को जिक्र किया है, लेकिन मर्ज़ई जो है इसको नहीं मानते। और यहाँ देखें ये इन्होंने कितना बड़ा झूठ और फरेब से काम लिया है कि पैदाइश को 13 फरवरी 1835 कहा गया है। ये लुकमान बाजवा ने ये बात नहीं की। ये पूरी मरज़ाइयत जो है तमाम कादियानी इसी तारीख को मानते हैं। ये मिर्ज़ा कादियानी की बात को नहीं मानते, लेकिन ये जो है मिर्ज़ा को ज़रूर मानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कसम उठा रखी है कि हमने मिर्ज़ा कादियानी की एक बात को भी नहीं मानना, मिर्ज़ा को हम मानेंगे। मिर्ज़ा कादियानी को अगर ये लोग मानना शुरू कर दें तो यकीन माने एक भी कादियानी दुनिया में ना रहे, तमाम मुसलमान हो जाएं। हम इसीलिए तो कहते हैं कि आप लोग मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को पढ़ा करें। जो जो मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को पढ़ता जाता है वो मुसलमान हुए जाता है। मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को अगर तमाम मरज़ई पढ़ना शुरू कर दें तो वो फिर कादियानी ना रहें, मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर 4 हरफ फेंक कर मुसलमान हो जाएं। ये जनाब एक दजल और फरेब था जो हमने पर्दा उठाया और आपको बताया। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।